modification of contract. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, and except as orders by the court for special reasons to be recorded in writing, no director, chief executive, managing agent, or other officer of the company shall be entitled to be paid any compensation for annulment or modification of a contract to which he is a party or of which he is beneficiary, if such contract is annulled or modified by an order issued by the court. Okay, section 274, no right to compensation for loss of office. No person shall be entitled to or be paid any compensation or damages for the loss of office by reason of an order issued under section 71 कि अगर वो court ने ही कर दिया तो फिर उस पे nobody will have any say और right के उस चीज की attainment के लिए कुछ claim करेगा. Please move on to the next slide. Okay, section. Can you just go back a little? 274. Yes, right. Okay, sorry, Fawad, for the botheration. I was on the 27. Yes, correct. Application for winding up a company or an order under section 290. If company or body corporate, the affairs of which have been investigated by inspector, is liable to be wound up under this ordinance, and it appears to the commission from any report made under section 269 that it is expedient so to do by reason of any such circumstances as are referred to in subclause or subclause 2, 3, 4, 5, 6, 7 of clause B, section 265, the commission may, unless the company or other body corporate is already being wound up by the court, cause to be presented to the court by the registrar or any person authorized by the commission in this behalf. A petition for the winding up of the company or body corporate on the ground that is just and equitable that it should be wound up. An application for an order section 290 or both a petition and application as aforesaid. Next, please. Please go to the next slide. Section 276, proceedings for recovery of damages or property. If from any report referred to in subsection 1 of section 269, it appears to the commission that proceedings ought, in the public interest, to be brought by the company or any body corporate whose affairs have been investigating in pursuance of clause A, clause B or C of subsection 1 of section 267. This commission shall be indemnified by such company or body corporate against any cost or expenses incurred by it or in connection with any proceedings brought by the virtue of the subsection 1, and the court or the other authority before which proceedings are brought shall pass on the order accordingly. Next, please. फातिमा हमें ये एक्सप्लेन तो करें, मतलब आप यू आर रीडिंग इट बट हमें इसको एक्सप्लेन करें. दूसरी बात ये, मैंने एक दफा पहले भी जब कोई और ग्रुप प्रेजेंट करा था तो मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज काइंडली जब भी कभी किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर किसी सेक्शन का रेफरेंस दिया गया हो, तो अगर आप उस सेक्शन के, अगर सब सेक्शन यहाँ पे लिखे हुए, अगर आप उसका रेफरेंस कोट कर देंगे, एक स्लाइड के ऊपर एक सेक्शन आना जरूरी नहीं है, एक सेक्शन 4 स्लाइड्स पे आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो एक डिस्कशन पॉइंट बन जाएगा, उसकी समझ आ जाएगी. मैं आपसे अगेन कह रहा हूँ, मैं आप लोगों से सेक्शंस नहीं पूछूंगा, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड के कॉन्सेप्ट क्या है. ठीक है, 274 पे वापस जाएं जरा एक दफा फवाद साहब. अच्छा बिलाल, here I have a question. Can I pause the question? बताएं आपका सवाल क्या बोले. कि ये आप कह रहे हैं कि आप कॉन्सेप्ट्स पूछेंगे, तो मुझे हमेशा आई नेवर गेट द क्लैरिटी कि वो किस तरह से होंगे, कि सेक्शंस नहीं आएंगे, कॉन्सेप्ट. आपसे सेक्शन से रिलेवेंट क्विज भी तो हुआ था ना एक, आपको याद है? लेकिन वो तो बस बिगनिंग में था, इतना ज्यादा उसका लेकिन आपको ये तो याद होगा कि मतलब वो क्विज आपके लिए डुएबल था, उसमें मैंने ये तो नहीं पूछा था कि मुझे कोई सेक्शन बताए. हाँ नहीं, ये था तो नहीं था. हाँ, मैं अभी भी नहीं पूछूंगा. आई विल नॉट आस्क सेक्शन 273 का क्या मतलब है. नो, आई विल नॉट आस्क. आई विल जस्ट आस्क यू, इन सेक्शंस के अंदर ना कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं. ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल सेक्शन में ये बताया हुआ है कि लेट्स से कि अगर आप एक चीज को, मैं आपको एक सिनेरियो दे दूंगा कि ये एक सिनेरियो है, ठीक है, उसका सेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, तो मुझे ये बताएं कि क्या क्या इसके अंदर ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं. तो आपने दिमाग से सोचेंगे. देखें, लॉ जो है ना, उसकी जो पहली
जो फंडामेंटल है ना वो कॉमन सेंस होती है, ठीक है। तो आप उस पे सोचेंगे आपको समझ आ जाएगा कि ये इसमें कोर्ट एक पार्टी है या इसके अंदर कौन कौन से लोग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है किसी कंपनी अफेयर के अंदर, सो यू विल गेट टू नो, यू विल अंडरस्टैंड कि इसमें बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट प्रिवेल करता है। तो ये एक तरह से किसी तरह या फॉर्जरी हो रही है, कुछ गलत चीज हो रही है, सो यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, वो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा। आपने ये पढ़ा हुआ है और आपने सिर्फ इसको समझा हुआ है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू रिमेंबर दीज सेक्शंस, आई डोंट रिमेंबर दीज सेक्शंस, आई एम हाँ, वेरी मेमोरी ऑनेस्ट, तो ठीक कर है। ही नहीं सकते इसको। जी बिल्कुल, ठीक है। सेक्शन 274 पे जाएं और आप इसको रीड कर रही हैं, फेयर इनफ, लेकिन हमें प्लीज इसको एक्सप्लेन भी करें कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपका भी गलत होगा तो बाकी क्लास वैल्यू ऐड कर देगी, और अगर आपका ठीक होगा तो जिनको समझ नहीं आई वो पूछ लेंगे। इफ एनीवन हैज अ अच्छा, क्वेश्चन प्लीज आस्क द ग्रुप, ठीक है। सारा ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल टू आंसर, और उसके बाद एक्स्ट्रा सीपी पॉइंट्स फॉर द क्लास अगर कोई एक्सप्लेन कर दे तो, ठीक है। किसी को समझ नहीं आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, ऑफ कोर्स, कोई मसला नहीं है। चलें जी, ओके, नो 274। राइट टू कॉम्पनसेट। हाँ जी, no right to compensation for loss of office. No person shall be entitled to or be paid any compensation or damages for the loss of office by the reason of an order issued under section 271. Now I have go back to the section 271 बिल्कुल चली क्योंकि जाए वो जी, लेकिन बिल्कुल चले जाए। हाँ to get the idea के क्योंकि last week story तो इतना मुझे कुछ against power of commission initiate against okay, members are not given मैं information. ये बहुत बहुत लंबा सेक्शन है जी, मैं आपके लिए इसको शॉर्ट कर देता हूँ। सेक्शन 274 पे वापस चले जाएं, ठीक है। आई टेल यू, एक लाइन में बता देता हूँ, क्योंकि इसका सिर्फ एक रेफरेंस देना छोटा सा जरूरी था। आपको सेक्शन लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक रेफरेंस दे देंगे उसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब अच्छा, ये है कि अगर इफ अ डिसीजन इज टेकन बाय द कोर्ट अगेंस्ट द मैनेजमेंट, ठीक है, ऑफ कोर्स द डिसीजन इज टेकन बाय द कोर्ट किसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी के ऊपर, या वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, या कोई ऐसी ऐसी बात है, तो उस बेसिस के ऊपर इफ अ पर्सन लूजेस हिज ऑफिस, ऑफिस का मतलब अपनी वो पोजीशन और अपना टाइटल लूज करता है, सो उसके अगेंस्ट कोई कंपनसेशन और डैमेज उस बंदे को नहीं पे की जाएगी। दैट्स इट, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स अब कॉमन सेंस पे जाते हैं, इट मेक्स सेंस बिकॉज इट इज अ शेडी मैटर, इट्स अ ग्रे एरिया, सो द कोर्ट हैज ऑलरेडी डिसाइडेड कि इसकी बुनियाद के ऊपर किसी को कंपनसेशन नहीं प्रोवाइड की जाएगी और हम नहीं करेंगे। दैट्स इट, इतनी सी बात है। सेक्शन 275 पे चलें, थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें ताकि हम इसको डिस्कस कर सकें, ठीक है अच्छा जी। जी। अच्छा, इस पे तो मैंने ये कर दिया था कि अगर कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि कंपनी को वाइंड अप किया जाएगा क्योंकि कुछ आपकी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज चल रही हैं जिसमें आप कुछ फोर्ज करते आ रहे हैं, तो फिर वो जो फाइनल डिसीजन है, क्योंकि कोर्ट इज कंसिडर्ड टू बी द सुप्रीम अथॉरिटी, तो उस पे कोई क्वेश्चन नहीं होगा। वो जो बात हो गई है बस दैट इज फाइनल, वो फाइनलिटी है। ठीक हो गया, फेयर इनफ, ओके। और इसमें मेंशन की हुई है सब क्लॉजेस वगैरह, और साथ में ये हाँ मेंशन जी, किया वो हुआ है कि जी, हाँ 270 ठीक ये है वाला आप तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। मैं 270 स्किप की बस रीडिंग की थी क्योंकि वो मैंने अपनी तरफ से जी जी पैराफ्रेज किया हुआ, तो मुझे लगा इतना कुछ, पर नाउ आई विल टेक केयर ऑफ दैट। चलें, हाँ ओके जी, 276 पे 276 चलें, के ठीक बाद है, ओके। ओके, प्रोसीडिंग फॉर रिकवरी ऑफ डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी। अब ये वो बात करेंगे उस पार्टी की जो कि विच वन इज बेयरिंग द लॉस, तो जो भी उसको कॉस्ट भी इनकर हुई है सारी प्रोसीडिंग्स में और हर चीज में, और उसके अलावा जो लॉस उन्होंने फेस किया है, वो सफर किया है, तो वो जो भी फॉल्टी वंस हैं वो इसको कॉम्पनसेट करेंगे। लेकिन जब तक वो चीज प्रूफ नहीं हो रही तो कमीशन अपने तौर पर ही इनिशिएट करेगा उनका केस, और वो द कमीशन विल बी बेयरिंग द ऑल एक्सपेंडिचर्स, लेकिन बाद में उसकी कॉम्पनसेशन वो करवाएगा। तो दैट वाज द होल पॉइंट दे वर कवर्ड इन दिस सेक्शन। सो मे आई मूव ऑन टू 277? जी जी, मूव ऑन, फेयर इनफ। ओके, एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ओके, मैं एक दफा पहले इसको पढ़ लेती हूँ तो फिर उसके जी बाद जी जी, मैं पढ़ें सम पढ़ें, अप कर दूँ। जी जी, When an पढ़ें पढ़ें पढ़ें। investigation Okay, when an investigation is ordered to be made under Section 263 or Section 265, the expenses of an illegal investigation shall, in the first instance, be defrayed by the Commission, but the following persons shall, to the extent mentioned below, be liable to reimburse the Commission in respect of such expenses. ये वही बात है जो 276 में हुई कि पहले कमीशन तो अपने उनके भी हाफ पर शुरू कर देगा, उनको डिफ्रे करेगा एक तरह से भी हाफ पर, लेकिन उसके बाद कमीशन
को ही वो उनसे पे करवाएगा कि जो तो पार्टी है which has been committing the wrong things. उसके बाद हमने चीजें बताई में कि रीइंबर्समेंट किन किन को होगी. एनी पर्सन हु इज convicted on a prosecution instituted in pursuance of section 270 or is ordered to pay damages or restore any property as a result of proceedings under section 276 may in the same proceedings be ordered to pay the said expenses to such extent as may be specified by commission or the court convicting such person or ordering him to pay such damages or restore such property as the case may be. ये वही बात है जो भी ऊपर हुई है कि जो भी गिल्टी साबित हो जाएगा वो पे करेगा. एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट ऑन whose names proceedings are brought as aforesaid whatever shall be liable to the extent of the amount or value of any sums of the property recovered by it as a result of proceedings. कि अगर आप कोई भी आउटसाइड पार्टी है या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी एफिलिएशन या एसोसिएशन आ रही है इस मैटर में तो वो भी उतने ही अकाउंटेबल होंगे जितनी की डायरेक्ट पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है. And they'll be liable to pay the whatever damages incurred by them. Where the investigation was ordered by the commission under clause C of section 263 or under section 265, the company or body corporate dealt with by the report shall be liable except so far as the commission otherwise directs. And where the investigation was ordered under section 263 on the application of the members making the application and the company or board बिला फॉर द टाइम आई एम गोइंग टू लोअर क्योंकि वो बीच में आ रहा है तो ये हिंडर कर रहा है मुझे रीडिंग में. अच्छा ठीक है जी. ओके. और बॉडी कॉर्पोरेट dealt by the report shall be liable to such extent if any as the commission may direct. अब ये यहाँ पे बस वो यही बता रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन कैसी होगी और रिपोर्ट की फाइंडिंग्स पर ही दे विल कंक्लूड. इससे ज्यादा मुझे इसमें कुछ लग नहीं रहा कि मैं अपना कुछ वो दे सकती हूँ इनपुट. तो प्लीज मूव ऑन टू द अच्छा जी. नेक्स्ट. क्वेश्चन है मेरा क्लास से, आपसे नहीं है, आप रहने दें. क्लास मुझे बताए डिफ्रेड क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्रेड? रेज हैंड्स एंड आंसर. एक सेकंड रुके यार, मैं कॉल ले लूं. एक सेकंड. जी जी इकरा जावेद. सर इसका मीनिंग उर्दू में बहकाना है लेकिन सर कुछ जो है वो आपको जो है वो डी बहकाना की गलत रास्ते पे लेके जाना और जो है वो कंपनसेट करना भी हो सकता है इसमें लॉ में जिस तरह पे करना तमाम एक्सपेंसेस को. सर इसमें ये है. ठीक है जी. तो जहीर मुझे समझ जहीर आया अब्बास. जो मुझे समझ आया. ठीक सर हो इसका गया. ठीक हो गया. डिफ्रेड का मतलब होता है उर्दू में बहकाना, किसी को बहकाना. अच्छा ठीक है. इसमें मैं सिर्फ आपसे वो तो ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्लॉज के लिहाज से इसका क्या मतलब बनता है. ठीक है. अच्छा जी. ताहिरा ने उसमें लिख दिया है नोटिफिकेशन आ रहा है टू कवर द कॉस्ट. अब मुझे समझाए कोई और क्लास में से कि ये पहली पहली जो क्लॉज है इसका क्या मतलब बनता है. जी ताहिरा आप ही बताएं हमें ये फर्स्ट क्लॉज क्या क्या मतलब बनता है इसका. Am I not supposed to give any input, right? सर No, इसमें no, ये है कि wait, अगर just कोई wait. भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो
जब सेक्शन 263 और सेक्शन 265 के अंडर जो होती हैं ऑर्डर की जाती है, तो एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कमीशन जो है वो कवर करेगी। ठीक हो गया, बिल्कुल सही हो गया। पहली थैंक यू सो मच। ठीक है जी, कंटिन्यू करें जी आगे। फातिमा अच्छा, ओके Fawad, please go on to the next slide. ओके Okay, अब second clause में वो कह रहे हैं the amount of expenses which any company, body, corporate or person is liable under this section to reimburse to the commission shall be recoverable from that company, body, corporate or person as an area of land revenue. ये बस पता नहीं थोड़ी सी इसमें चीजें, ये वैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ड्रैग ही की हुई वही बात चल रही है कि अब जो एक्यूज्ड वन है, गिल्टी वन है, वही वो कॉम्पनसेट कर। तीसरी क्लॉज में कह रहा है for the देखें purpose ऐसे नहीं होता, सॉरी मैं आपको करेक्ट करता हूँ। लॉ कभी भी ड्रैग नहीं होता। लॉ मेक श्योर करता है टू एक्सपेक्ट, जो टू पॉसिबली जितने एस्पेक्ट्स हो सकते हैं उनको कवर उसको करे, कवर करना। ताकि कहीं से कोई ईची बीची निकाल के ना ले आए कि यार अच्छा आपने तो सिर्फ इतना लिखा हुआ था। यूजुअली अदालत की जो कार्रवाई होती है और लॉ एक ऐसी चीज है जो कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहा होता है, बिकॉज जी एवरी सिंगल टाइम लोग लॉ को बाईपास इस तरह से करते हैं कि जो अंडरस्टूड चीजें होती हैं लेकिन रिटर्न नहीं होती, लोग उसको कहते हैं नहीं जी बिकॉज ये रिटर्न नहीं था इस वजह से दे टेक एडवांटेज ऑफ इट। सो दैट इज व्हाई इट्स नॉट अ ड्रैग, दे आर मेकिंग श्योर कि हर पॉसिबल सिनेरियो को वो कवर कर सकें। ठीक है, अच्छा, चले लेकिन वो बस वो कंटिन्यू करें। पढ़ते हुए मुझे वो थोड़ा लग रहा था कि भाई इतनी जी जी वर्बोसिटी, लेकिन ओके। For the purpose of this section, any cost or expenses incurred by the Commission or in connection with proceeding brought by the Commission under Section 276 shall be treated as expenses of the investigation giving rise to the proceedings. ये वैसे self explanatory ही है, तो इसलिए मैं fourth clause पे move कर रही हूँ। Any liability to reimburse the commission imposed by clause A, B of subsection 1 shall subject to the satisfaction of the right of the commission to reimbursement be a liability also to indemnify all persons against liability under clause 6. वो यही कह रहे हैं कि जो भी कमीशन का यहाँ पे उसने वो जो इनिशिएट की है सब चीज दूसरी पार्टी के बिहाफ पे, वो कॉम्पनसेट तो होगा लेकिन वो दूसरे उन लोगों के लिए भी इंडेमनिफाई करेगा जिनके अगेंस्ट लाइबिलिटी उसकी इनकार हुई है। Clause 5th में ये कह रहे हैं any such liability imposed by clause A of subsection 1 shall subject as aforementioned be a liability also to indemnify all persons against liability under clause B of that subsection. अच्छा जी, any person liable under clause A or B, C or subsection 1 shall be entitled to contribute from any person liable under the same clause according to the amount of their respective liabilities thereunder. एक second, shall be entitled to contribute from any person. यहाँ पे Bilal, I just need to sorry मैं interrupt कर रहा हूँ confirm सर। something. sorry फातिमा जी सर, less than a minute left, हम rejoin करेंगे। ठीक है, फॉरन जी जी बिल्कुल 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 राइट अवे। ठीक है, लेट्स अच्छा, I रीजॉइन। wanted to अब discuss let's something from here. ठीक है, जी let's reconnect then। लेट्स ठीक है। रिकनेक्ट। ओके ओके।